Hello, everyone. History, as we know, is a very complicated kind of a subject in the sense that you need to learn a lot, and there's a lot of data that needs to be mugged up. But and there's always a confusion on as to how to write answers, because a lot of students, like I've done history honors in my college. So the kind of answers and the expectations that we have in college is very different from what UPSC demands us. So, and we are always stuck between this idea that do we need to write answers the way they are written in our college days, वो paragraph में लिखना है कि पूरा पूरा with historians, with arguments, with that, or in certain other fashions जैसे कि अभी model answers में it's given कि point wise देना है, pointers लिखना है, कैसे लिखना है, and also in that also there are two different kinds of approaches, like पॉइंटर्स में भी थोड़ा बड़ा बड़ा पॉइंटर्स लिखना है ऑप्शनल जैसा, या फिर यू गो अबाउट जैसे जीएस के होते हैं पॉइंटर्स, लाइक छोटा 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 लिखा ईच एंड एवरी पॉइंट ऐसे करके विद एग्जाम्पल पॉइंटर एग्जाम्पल ऐसे जो जीएस का होता है. तो दीज मॉडल आंसर्स विल हेल्प यू डिफरेंशिएट थोड़ा सा बिटवीन GS kind of answers versus the optional kind of answers. And matlab you need to look deeper once you write your test. It is very important that you write your test. I did a brainstorming cheese basically because I'd already written one mains, and so I had a lot of idea about कि आंसर कैसे लिखने हैं. मेरी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी. That is why brainstorming was one thing that helped me. But if you are giving your mains for the first time and you think that there's some problem in your writing part, then you should give test, and after test it's important that you come back to your test after it is checked, after it is not checked also. You can just see तुमने क्या लिखा है और मॉडल आंसर में क्या डिफरेंस है. मॉडल आंसर में डिफरेंस है, या फिर इफ यू हैव पियर्स, आई आल्सो हैड सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु यूज्ड टू राइट विद मी, तो वी वुड चेक कि what you have written, what I have written, and that will help you understand your lacunas, where is the gap between your answers and other people's answer. So that is where some kind of an answer, some kind of prepared material helps you, because मतलब एक पैरामीटर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे तुम लाई करते हो. And in that sense, I will be discussing some of the model answers. जैसे this is paper one. I think I gave this test. Yeah. So this is paper one. Huh. So, see, this is the first question, which says discuss the evolution of state institution and taxation system from Vedic period to later Vedic period. The first thing, when you read a question, just mark what all parts you will form. मतलब इसमें साफ दिख रहा है कि state institution का और taxation, these are two different headings that you will be forming. तो दोनों को address करना है from Rig Vedic to later Vedic period. Now there are two periods, so you can मतलब एक आइडियल आंसर इसमें वही बनेगा दैट यू डिवाइड स्टेट इंस्टीट्यूशन को ऋग्वेदिक एंड लेटर वेदिक, देन टैक्सेशन ऋग्वेदिक एंड लेटर वेदिक, द वे इट इज डन in this answer also. Sometimes students have this confusion, should we go about like कि ऋग्वेदिक पीरियड के दोनों बता दें फिर लेटर वैदिक पीरियड के दोनों बता दें. मतलब I've checked some of the copies पहले, so I've seen some student would do it कि ऋग्वेदिक सिस्टम का स्टेट इंस्टीट्यूशन टैक्सेशन बता दिया, then they'll tell लेटर वैदिक का ये and try to draw that comparison from there. But अगर आप एक, क्योंकि जो डायरेक्टली पूछा है पहले उसको एड्रेस करोगे, so it will be easier for you. So this, लेकिन इस question में first thing that we can change is this introduction. This is a very plain, simple kind of introduction and does not add a lot of value to it. तो इसमें maybe we can use sources कि ऋग्वेदिक और later Vedic का पता हमें कहाँ से चलता है. We just mentioned that there are the literary sources which are helping. That is one kind of introduction. We can also give the time frame for it because that will add some value. So if you see this introduction की line, it is very plain. है ना, political, economic, social structure. So it is not adding a lot of value. The examiner will not draw a lot of interest in your introduction. And I always feel that each and every part of your question is important. अगर जितना value addition जिस part में कर सकते हो उतना better है. Then apart from this introduction part, it does not have to be very long, but it has to add value, your introduction. Then apart from that, state institution
का ऋग्वेदिक का दे हैव डिफाइंड 1 to 3 points. Later Vedic mein they have defined 1 to 3 4 points. I think this is good enough. Tribal polity we know, chieftain we know, assemblies उसके बीच में describe कर दिया, and then later Vedic period में ये चीज थी, this have described. Then one thing you can see for yourself if you want to use these headings like tribal polity, chieftain, no centralized state. So what I was doing, I couldn't use these headings because in the model answer we are giving a lot of focus. मतलब हमारे पास बहुत टाइम है तो हम उसको सोच समझ के कर सकते हैं, मतलब इस पूरे पॉइंट का हेडिंग क्या बनाना है, तो ये हमारे पास अभी टाइम है तो हम कर पा रहे हैं. बट देन इमीडिएटली जब उस टाइम पे एग्जाम लिख रहे होते हैं तो इतना प्रेशर होता है, हमें सिर्फ ये याद आता है कि हाँ ओवरआर्चिंग ये वाला पॉइंट हमको इसमें मेंशन करना है, बट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें हेडिंग क्या लिखूं, हेडिंग क्या लिखूं. तो हेडिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट राइटिंग इन पॉइंट्स इज इम्पॉर्टेंट. So that is there, early Vedic, later Vedic, and then we have described taxation system. Usme Rig Vedic, except for instead of writing these dot dot dot, you can also write ABC so that या फिर उसमें you can just avoid 1 2 point and उसको सिर्फ box कर दो state institution को and write points as 1 2 3 4, which I feel is मतलब ये बहुत छोटी सी चीज होती है. It doesn't लुक लाइक कि हाँ अरे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लिखा तो है ना कंटेंट, बट आई थिंक ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा एम्फेसिस आता है उससे, बिकॉज उसको एग्जामिनर को दिख रहा है कि आपने 4 पॉइंट इसमें, 4 पॉइंट इसमें, फिर 4 4 पॉइंट आप एटलीस्ट 16 17 पॉइंट लिख रहे हो ऑप्शनल के उसमें 20 मार्कर के क्वेश्चन में. सो it will give you that kind of an edge in your model answer, in your answers when you're writing. So instead of doing this dot dot, you can also do 1 2 3 4 wala cheese. And key changes in the transition. So this is one thing that could be like ऐसे एक तो ये plain हो गया, you have directly addressed the question. Now you have summarized also here because ये थोड़ा बड़ा question है, 20 marker question है, you're going to write 4 points. So one मतलब if I would have been writing, I would have missed this. तो यहाँ पे this key changes in the transition. तो this I got from this model answers कि अच्छा ये point ये चीज I can do in a lot of 20 marker questions. कि एक summary जैसा अगर if the question is such कि उसमें डायरेक्टली पूछा चेंजेस है बट हम बहुत डायरेक्टली उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसमें बिल्कुल डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ट्राइबल पॉलिटी टू टेरिटोरियल किंगशिप, मतलब इट अगर यहाँ पे तो सामने दिख रहा है बट इन योर कॉपी इट विल बी ऑन डिफरेंट पेजेस. तो एग्जामिनर बैठ के नहीं लुक आउट करेगा कि ट्राइबल पॉलिटी पीछे लिखा है, इधर लिखा है, फिर ये चेंज हो गया है. तो इफ यू कुड जस्ट समराइज इट इतना मतलब 2 लाइन में सिर्फ इफ यू कुड समराइज देन इट इज ग्रेट. तो I feel like ये वाला चीज has helped me to understand. Then there was one question. See, so one is this question: the Varna concept may always have been largely a theoretical model and never an actual description of society. कमेंट लिखा है इसमें, ठीक है. तो इसमें some people might go for a paragraph kind of a thing because सीधा सीधा कमेंट लिखा है. what do you want to say about it, ऐसे कुछ प्रो नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, कुछ मतलब वो नहीं है इसमें कि that you have to focus on which part basically. But if you look at it from a broader perspective, एक हम डिबेट पढ़ते हैं कि was the Varna system a theoretical और practical भी था. मतलब अगर if you do not read this statement जिस तरीके से वो लिखा है, but this debate is very much popular कि वर्ना सिस्टम पुराने टाइम में नहीं होता था या होता था इस टाइम पे, ठीक है. तो considering that part also, you can go for paragraph in this question, but I would still advise force yourself to write in points because points में ज्यादा clear होता है, ज्यादा variety of points you are able to write. आप अपने आंसर को diversify कर पाते हो. पैराग्राफ में no matter what how much you want to do it, but पैराग्राफ में वो आ ही जाता है. यू वांट टू मेंटेन दैट फ्लो, तो आप एक ही डायरेक्शन में लिखते चले जाते हो एंड आपका जो डिफरेंशिएशन होता है फ्रॉम वन आर्ग्यूमेंट टू अदर आर्ग्यूमेंट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट वेरी वेल. ठीक है. देन see B.R. Ambedkar say you can introduce with anything. You can introduce with the that Varna system is mentioned in this book. मतलब tracing कि कहाँ से हमें start पुरुष सुक्ता you can mention. You can start with that also. You can start with contemporary also. Interesting thing, you can also start this with any kind of current affairs also. मतलब history में generally there is no scope for writing current affairs, but Varna system is something that you can I think
Right, from the current affairs point of view, I remember that at least two or three questions in which I've either introduced or concluded my answers with current affairs. So if you could link with that, that is also good. This is also a very good introduction. B.R. Ambedkar से link किया, so you are not going in a very cliche manner of writing a answer. But I would see the historical interpretation and social framework. इसमें one problem I see is कि क्वेश्चन से टॉप वो नहीं उठाया है जो हेडिंग है ना, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ना एज अ सोशल फ्रेमवर्क, ये हेडिंग डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं है, बट दैट इज व्हाई आई फील लाइक कि उसमें ना मतलब दिस मॉडल आंसर में यू हैव टू सी कि ये वाली चीज प्रॉब्लमेटिक है, एंड दिस यू विल हैव टू इम्प्रोवाइज कि क्वेश्चन की कोई भी अगर हेडिंग है दैट हैज टू कम फ्रॉम द क्वेश्चन, may always have been largely a theoretical model and never an actual description of society. So in this, your heading could be Varna concept as a theoretical model, not a description of society. This could be your one, this could be nahi, this should be your heading, otherwise you will miss out the whole point of writing this answer. Then the points are fine, this you can do 1 2 3 4 5 whatever points are there, but then you can also do one thing is that इसमें alternate point नहीं लिखा है, मतलब alternate size side नहीं लिखी है, which is that it is not a theoretical model but it could have been an actual description of society, तभी तो it is existing even today. Right. So इसमें they've missed one part, that is the critique. They've written just in one direction. ये points are very good. You can pick up a lot of content from here. Chandragupta Maurya said, Louis Dumont had said something, and because these 2 points definitely would not be there in my notes. So these you can pick up from here. R.S. Sharma said, Ramla Thapar has said something. So these points you can pick up from here, but you need to understand कि यहाँ पे हमको alternate साइड भी डालनी थी, मतलब यू हैड टू पुट अप क्रिटिक ऑल्सो इन एवरी क्वेश्चन, थिंक ऑफ सम क्रिटिक, थिंक ऑफ समथिंग दैट कैन यू राइट इट फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. इफ देयर इज अ स्टेटमेंट इट इज आस्किंग अस जस्ट टू कमेंट, इट इज नॉट आस्किंग अस टू शेयर की पॉजिटिव लिखो, एनालिसिस करो, क्या करो, कुछ नहीं करो. इट इज जस्ट आस्किंग अस टू कमेंट. तो वी कैन कमेंट ऑन एनी साइड कि ये वाला चीज माइट बी द स्टेटमेंट इज ट्रू बट देयर आर डिफरेंट साइड्स टू इट ऑल्सो, इसका ऑल्टरनेटिव साइड भी है. So that's there. One thing that you should keep in mind कि हर question में think, can you write the alternate side, जैसे हम बाकी GS वाले papers में करते हैं. You should like focus, it will fetch you marks, it will definitely fetch you marks if you're writing the alternate side of it. So this only I wanted to emphasize on this question. And the second thing is, in this question there are a lot of historians, lot नहीं है but Romila दो तीन चार I think तीन है, तीन are still fine, three you can manage, but in some of the questions I was reading that model answer में at least पांच पांच हिस्टोरियंस दे दिए हैं कि हर पॉइंट के साथ एज अ हिस्टोरियन. सो उस पे ओवर एम्फोसाइज नहीं करना. इट्स ओके इफ यू डू नॉट रिमेंबर द हिस्टोरियन, यू शुड रिमेंबर द आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपरली. हिस्टोरियन अगर आपने दो भी लिखे हैं एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में भी लिखने की जरूरत नहीं है. इफ यू राइटिंग वन हिस्टोरियन इन ईच क्वेश्चन, टू और थ्री इन लाइक वेरी गुड क्वेश्चंस, मतलब जिसमें तुमको बहुत अच्छे से आता है, तुमने दो लिख दिए उसमें तीन लिख दिए, तो इट इज गुड इनफ. वैल्यू एडिशन नीड्स टू कम फ्रॉम द कंटेंट एंड आस्किंग, मतलब एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन ने पूछा है उसको कितने अच्छे से हिट किया है, उसका क्या ऑल्टरनेटिव साइड प्रोवाइड कर पाए हो, एंड क्या उसको कंक्लूड कर पाए हो. तो जैसे इट्स रोमिला थापा आर एस शर्मा से कंक्लूड किया है, सो इट इज अ वेरी गुड आइडिया दैट you can maybe conclude through historians if the opinion is balanced, only and only when the opinion is balanced. अगर opinion balanced नहीं है, अगर you think कि इसके में debate आ सकती है, then do not use historians to conclude your answers. That is it about this ancient के answers. Ancient के answers में जैसे economic functions, banking functions, here you can write, जैसे इसमें functions पूछा है guilds के, तो it is वेरी मच लाइकली कि तुम इसको मतलब फंक्शन में क्या पूछ सकता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यहाँ पे यू गिव हेडिंग.
ताकि एग्जामिनर को दिखे दैट यू आर एड्रेसिंग ईच एंड एवरी पिलर, या मतलब वेरिएशन तुम एड्रेस कर पा रहे हो उसमें क्वेश्चन में. सो हियर यू कैन सी कि इस क्वेश्चन में इट इज वेरी लाइकली दैट यू यूज दिस जुडिशियल फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन, सोशल फंक्शन, एंड देन गिव सब हेडिंग इन दैट. तो ये उस सेंस में ये अच्छा आंसर है. तो मॉडल आंसर विल ऑल्सो टीच यू कि किस क्वेश्चन में क्या तुम नया कर सकते थे विच यू माइट हैव मिस्ड इन योर ओन आंसर्स. राइट. ठीक है. we've done paper 1. From paper 2, see, paper 2 modern history में like these kinds of questions are there. Tipu Sultan had little success. 10 marker question आते ही आते हैं उसमें. तो 10 marker में मोस्टली तो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं. मतलब इट इज जनरली सीन कि एक तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, यू विल हैव टू अटेम्प्ट देम एनी हाउ. थोड़े रैंडम क्वेश्चन आएंगे, तो इफ पॉसिबल यू कैन, जैसे हम जीएस में ब्रेनस्टॉर्म करते हैं थ्रू सम स्ट्रक्चर, इफ यू कुड फिट इन दो स्ट्रक्चर्स इनटू दीज 10 मार्कर क्वेश्चंस इट इज वेरी गुड. वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पेस्टल अप्रोच लगाना है, स्टेक होल्डर अप्रोच लगाना है, इफ यू आर एबल टू फिट इन दैट, वो बहुत ही मतलब इट विल हेल्प यू इन 10 मार्कर क्वेश्चन स्पेशली, क्योंकि छोटा छोटा लिखना है. एंड हियर यू कैन ऑल्सो राइट पॉइंट स्मॉलर पॉइंट्स. एंड हियर बट हियर ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, जैसे ये है प्लांटेशन माइंस जूट मेकिंग ये वाला, हियर यू कैन गो फॉर पैराग्राफ ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे यू नीड नॉट शो. अगर क्वेश्चन आता है देन वेल एंड गुड, बट अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है कि ये डिफिकल्ट है, इसमें ज्यादा पॉइंट्स जनरेट नहीं हो पाएंगे मुझसे, मतलब कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन होते हैं कि बिल्कुल ही नए आ गए, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि उसमें क्या लिखना है, बट एनी हाउ यू विल हैव टू राइट. तो देयर यू कैन गो फॉर पैराग्राफ काइंड ऑफ एन स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 पेजेस में पैराग्राफ लिखना इट्स इजी, एकदम एकदम खत्म हो जाएगा. एंड तुमको ज्यादा पॉइंट्स लिखने भी नहीं पड़ेंगे कि ना सोचना पड़े कि अब मैं क्या लिखूं. एंड अगर वो खाली लगेगा, आप 1 पेज लिख के छोड़ दोगे क्योंकि आपको 2 पॉइंट आए, 2 पॉइंट आपने लिख दिए छोड़ दिया, तो इट विल क्रिएट दैट नेगेटिव काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट, यार नहीं हुआ कंप्लीट. So it's advisable in these 10 marker kind of questions that you can go for paragraph. If you're not getting a lot of content, if you have a lot of content, go for pointers. So if you could see that in these answers, the pointers are smaller. So 10 marker questions में अगर if you know the question very well, try to write smaller points, क्योंकि वो छोटी space में ज़्यादा fit in करना है. And एंड अगर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता है, बिकॉज वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा फिर भी, तो गो फॉर पैराग्राफ काइंड ऑफ अ थिंग. एंड अगेन आई वाज सेइंग कि जैसे ये है, यू कैन बॉक्स इट, वो जो बड़ी वाली हेडिंग है जस्ट बॉक्स इट, तो वो ताकि अलग से विजिबल रहे. एंड ये स्ट्रक्चर, इंटरलॉकिंग कंट्रोल, कैपिटल मोबिलाइजेशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू राइट पॉइंट 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 करके उसकी वो प्रॉपर हेडिंग दो कि स्ट्रक्चर लिखना है, ये लिखना है. जस्ट राइट वन पॉइंट, एंड जब तुमको लगता है कि इस पूरी लाइन में कुछ कीवर्ड है, जैसे मैनेजिंग एजेंसी वाज अ फर्म to manage multiple industrial units on behalf of investors. So what is the crux? That they were managing multiple industrial units. Yeah, है ना? हाँ, this is the main crux. So you can just highlight manage multiple industrial units. Then diverse enterprises. This you can underline. And this capital mobilization here, it can come in the point only while you're writing in the flow, and it was used for the capital mobilization often listed on the Calcutta or Bombay Stock Exchange. So there you can underline capital mobilization. There's no necessary pressure that you need to take कि मुझे ऐसे point याद आने चाहिए, because it will be nearly impossible for you to generate these kind of pointers there. Then a very good like conclusion that you're concluding with Bipin Chandra and D.R. Gadgil. And one more thing, if when you're doing your previous year questions, अगर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं, ट्राई टू रिकॉल एंड मतलब उसको रिसर्च कर लो थोड़ी कि वो स्टेटमेंट किसने बोला है. एंड अगर वो रिपीट हो जाता है क्वेश्चन बाय एनी चांस, तो इफ यू इंट्रोड्यूस दैट विद द नेम ऑफ द हिस्टोरियंस हु हैव सेड इट, इट विल एड सम ब्राउनी पॉइंट्स टू योर आंसर. बट इफ यू डोंट नो, इट्स कंप्लीटली फाइन. अगर कुछ नया टॉपिक आता है, इट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू टेक अ लॉ, मतलब ऐसे प्रेशर लेने की उस पर जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कि नया स्टेटमेंट आया, मुझे क्या पता किसने बोला है ना. बट इफ यू थिंक कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, देन यू शुड डेफिनेटली इंश्योर कि तुमको पता है कि वो किस हिस्टोरियन ने बोला है. तो एक तो तुम्हारा आंसर की वैल्यू एडिशन बहुत सॉलिड हो जाएगी फर्स्ट वर्ड से ही कि इसने बोला है, तो एग्जामिनर विल बी लाइक
मतलब बच्चा पढ़ के आया अच्छे से, एंड देन यू ऑल्सो नो कि वो हिस्टोरियन किस साइड में बोलता है, तो इट्स ऑल्सो इजियर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस बेटर। ठीक है। तो इफ यू सी मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम जो 10 मार्क का क्वेश्चन है वो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं एंड यू आर एबल टू राइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो इफ यू कुड सी ये मॉडल आंसर से ही कि जब एंशियंट के हम लिख रहे थे तो दे आर लेस पॉइंट्स बट वो 2-3 लाइन में एक पॉइंट है। जब इन इसके मॉडर्न हिस्ट्री के लिख रहे हैं तो इट इज वेरी स्मॉल स्मॉल सिंगल स्टेटमेंट वाले पॉइंट्स। बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री के इफ यू सी योर नोट्स ऑल्सो या फिर कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारी बातें बोली है, मतलब इन जनरल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नोन अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसलिए तुम्हारे पॉइंट्स ज्यादा आ जाते हैं, और जब पॉइंट्स ज्यादा आएंगे तो यू ट्राई टू रिड्यूस द मतलब उसको एक्सप्लेन करना कम करके राइट द पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट्स लिखो तो इट्स बेटर। एंड देन दिस वे ऑफ राइटिंग आल्सो इज वेरी गुड लिमिटेशंस में। तो इफ यू नो एनी हिस्टोरियन तो सिर्फ उसका नाम लिख दो कि इन्होंने बोला है ऐसे करके, उसके बाद पॉइंट्स लिस्ट कर दो, या फिर इनको लास्ट में लिख दो, या फिर इनको किसी एक पॉइंट के अंडर भी लिख सकते हो कि लोकलाइज ग्रीवियंसेस में आरसी मजुमदार हैज सेड दिस, और यू said it in the end that these kind of points that there were limitations political conception has been also supported by historians like R.C. Majumdar. And yeah, that is it. बट वन थिंग इज दैट कि जो इस वाले मतलब पूरे मॉडल आंसर्स में आई फाइंड प्रॉब्लमैटिक इज कि दे हैव नॉट यूज्ड देयर हेडिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चंस। तो even if it is a statement based question, you should definitely use your heading from the question itself. So it says that peasant movement of second half 19th century lacked positive conception which would unite the people in a common struggle on a wide region and all India plain and help develop long term political development. It is not positive conception, it's political conception. So your first heading should not be limitations in political conception, it should have been that the uh, lacking of political conception in the peasant movement. It should have been picked up from the question itself, and then this you should have addressed this that there was lack of common struggle। और मतलब जब आंसर लिख रहे हो तो try to pick up each and every question, मतलब अगर maximum points from the स्टेटमेंट इटसेल्फ। एक तो हेडिंग तो देनी ही देनी है। लिमिटेशंस इन पॉलिटिकल कंसेप्शन डज नॉट मेक सेंस बिकॉज एग्जामिनर को लगेगा कि आपने जो आपके नोट्स में लिखा था कि इसकी लिमिटेशन है, आपने यहाँ लिमिटेशन लिखनी, आपने अपना आंसर क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड ही नहीं किया, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके फ्लो में आप गए ही नहीं। तो दैट इज समथिंग दैट आई फाइंड प्रॉब्लमैटिक इन दीज मॉडल आंसर्स विच यू कैन लुक फॉर योर सेल्फ। एंड फिर उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है कि उसमें पॉलिटिकल देयर वाज पॉलिटिकल कंसेप्शन एंड यूनिटी seen in the peasant movement as, फिर उसके बाद यू राइट पॉइंट्स। ठीक है। दिस क्वेश्चन जैसे ये है, द बैटल ऑफ प्लासी दस मार्क बिगनिंग ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी in India. I, if I could recall, we this is a PYQ, so you could have started this question from the historian who has said it. So it would have added a value and a context to the heading also. In the introduction also, you can describe a little bit what do you mean by that. मतलब क्या वो statement बोलना चाह रहा है उसका अगर crux if you could write in 1 or 2 statement, you can also do that. Thus mark the beginning of political supremacy. तो immediate consequences नहीं लिख के your heading would have been Battle of Plassey marking the beginning of political supremacy of East India Company. तो वो लिखा, and then writing that however it was not exactly the beginning of supremacy, जो क्रिटिक लिखना है, मतलब लिमिटेशन ऑफ प्लासी इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस हमें लिखना वही है, बट योर हेडिंग शुड बी डायरेक्टली इन लाइन विद क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में जो मतलब क्वेश्चन में जो वर्ड पूछे हैं उस वर्ड में लिखना है उसको। बैटल ऑफ प्लासी मार्किंग द बिगनिंग ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, ये आपकी पहली हेडिंग है। सेकंड हेडिंग है बैटल ऑफ प्लासी was limited and it did not
Battle of Plassey did not mark the beginning of political supremacy because this, and then concluding on a balanced point, क्योंकि limitations कम है, it was definitely like a beginning. क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हुई इसलिए बैटल ऑफ बक्सर हुई इसलिए देयर वाज द सुप्रीमेसी. सो राइटिंग सम काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड कंक्लूजन इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये कंक्लूजन कुड आल्सो बी अ लिटिल बिगर. मतलब जैसे हम जीएस में लिखते हैं ना कि एक लाइन में बस कमिटी से उसको कंक्लूड कर दिया, बट देन हियर देयर इज डिबेट. तुमको डायरेक्टली दिख रहा है कि दोनों साइड में डिबेट है, दोनों साइड में काफी पॉइंट्स हमारे पास लिखने के लिए. कि इट वाज अ बिगनिंग, इट वाज नॉट अ बिगनिंग, हिस्टोरियंस भी है हमारे पास, हिस्टोरियंस का क्रिटिक भी है हमारे पास. सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन राइट अ लिटिल बिग कंक्लूजन एंड फाइनली उसको कंक्लूड कर दो कि हिस्टोरियंस आर स्टिल डिबेटिंग एंड विल गेट टू नो इन द फर्दर डिबेट्स, ऐसे करके. इन दोज क्वेश्चन जिसमें आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो यू डोंट पुट इन योर ये कि ये है कि वो है. just put in कि historians are still debating on the issue and it is a ongoing process, and just conclude that. फिर ये है जैसे इसमें तो कुछ मतलब नेहरू ट्राइबल पंचशील, तो क्या ही इसमें कुछ लिख सकते हो. मतलब देयर इज नो स्ट्रक्चर टू इट, राइट? इस 5 पॉइंट्स है, सर्कल बना दो या मतलब वो बना दो, दैट सर्कल बना के जो वेन डायग्राम जैसा कुछ बनाते हैं. मतलब दीज आई थिंक ये जो लास्ट लास्ट के टॉपिक्स है नेहरू पॉलिसी और ये सब, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस. इसमें कुछ डिबेट विबेट ऐसे आती नहीं है, तो एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यू कैन राइट. One more thing, in 20 markers and 15 marker questions, कुछ भी जैसे ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है एंड 15 मार्कर क्वेश्चन है. इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एटलीस्ट 2 या 3 हेडिंग्स यू कैन मेक आउट ऑफ इट. बिकॉज अगर तुम एक ही हेडिंग लिख के फिर 3 पेज भरोगे तो इट विल बी वेरी मोनोटोनस. वन वन थिंग दैट तुमको खुद को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे कि मैं क्या लिखूं एक ही डायरेक्शन में इतना कि 3 पेज भर जाए. एंड देन सेकंड एग्जामिनर विल आल्सो थिंक कि कुछ तो इनकम्प्लीट है, that this person has not addressed the question completely. इसलिए it's important you can see from these also कि इन्होंने क्या क्या dimension तोड़ी है. Orientalism produced a knowledge of the past to service the needs of the colonial states. Elucidate करना है सिर्फ, इसमें डिबेट भी नहीं बोला है कि तुमको डिबेट करना है, बट यू योरसेल्फ थिंक कि एक सिंगल स्टेटमेंट को तुम 3 पेज में कैसे इलुसिडेट करोगे. एंड एक ही डायरेक्शन में यू हैव टू राइट एटलीस्ट, अगर तुम एक पेज पे 4 पॉइंट्स में लिखते हो तो 12 पॉइंट्स इन सिंगल डायरेक्शन विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. सो इस in these type of questions you try to find out various dimensions that you can produce in these questions, जैसे production over orientalism, serving the needs of colonial state. इसमें इन्होंने फिर इसको ब्रेक कर दिया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक लेजिटिमेशन ऑफ रूल थ्रू कॉलोनियल कल्चरल डोमिनेशन. तो इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड कल्चरल, उस पार्ट में इसको डिवाइड किया एंड देन दे हैव पुट टू पॉइंट्स इन ईच. तो वो थोड़ी जब प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस, तो ट्राई टू लर्न दैट आर्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन कि उसको कैसे हम ऐसे कुछ बड़ी हेडिंग दे सकते हैं क्या, वेर यू कैन पुट टू पॉइंट्स इन ईच एंड योर वर्क इज डन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन जस्ट वन डायरेक्शन और वो मोनोटोनस बन जाए. ठीक है, आई थिंक that is it from my side. Yeah, largely these things I wanted to highlight in these model answers.